forever, now I drive alone past your street. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace, so please, please. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. At night when the stars light up my room, I sit by myself talking to the moon. जल्दी जा आज मेरे उड़ने दे खुले बाल There was a man who grew up in India named Srinivasa Ramanujan, and he grew up, he was poor, he didn't have access to the internet, there wasn't the internet at the time, he didn't have any formal education, but somehow he managed to get a book, he got a math textbook, and you know, it didn't cover all math, it just covered a part, but that textbook was enough for him to basically figure out all of modern mathematics that had existed at that time and push the field forward. And you know, so I kind of think about this, and you know, what would have happened if he'd had access to the internet? Right? I mean, how much better, if we'd invested in that kind of infrastructure and connectivity, how much better off would the world be? जो लोग शांत होते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, लोगों को लगता है उसे बोलने में झिझक है या उसको शर्म आ रही है बोलने में, या उसके पास इतने विचार ही नहीं है कि वो बोल पाए। असल में क्या है, वो अपने जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढता है कि किसके साथ मैं बात कर सकूं। वो हर किसी के सामने बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है इन लोगों के सामने मेरी बात की वैल्यू नहीं है। ये अभी इंटेलिजेंट क्वेश्चन में कह लो, सोसाइटी के पैरामीटर्स कह लो, उसे लगता है यहाँ मेरी बात की वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है जो इंसान बोल नहीं रहा उसे आता नहीं, उसे बहुत कुछ आता है, उसके मन में भरी हुई है सारी बातें, पर वो उसी व्यक्ति के सामने बोलता है जो उसकी बात की वैल्यू कर सके या जो उसके दिल के करीब हो। वो चार जगह ज्ञान नहीं देता है। तो एक चीज समझ लो, जीवन में जब भी चारों तरफ से काला घना अंधेरा है, इसका मतलब कुछ देर बाद सुबह होने वाली है। पता है तुमको ये लॉजिक? बस इंतजार करना है सुबह होने का। वो नहीं होता कई बार बच्चों से जो आप बोल रहे हो। एंड इन 90 to 95% ऑफ केसेस द कल्प्रिट इज पेरेंट, एंड ऑफ कोर्स द एजुकेशन सिस्टम, पीपल लाइक अस। डेफिनेटली वी आर। आईटी कोचिंग खोलते हैं हम लोग, डेफिनेटली वी आर। हम क्या करें? आप पढ़ना चाहते हो तो हमें खोलनी पड़ती है। आप बोलते हो आईटी कोचिंग खोलो तो हम खोलते हैं। हर कोई रिस्पॉन्सिबल है। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, एजुकेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, सबसे ज्यादा पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, स्कूल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रॉब्लम बड़ी है। Walk at white night, my friend. You are my reminder. Play it like a fighter. I am not outsider. I'm a Le regard absent, il est seul et lui parle. Souvent il n'est pas fou. Il aime ses doux, il la voit partout. Il attend debout, une rose à la main. Non, plus rien ne le retient. Dans sa love story, il la voit partout. Il attend debout. प्यार से लाके देना भैया। ऐसे नहीं भैया, मेरे को डंबल लेके आओ। भैया मेरे को डंबल लेके आओ। तेरे को क्या करेगा? डंबल लेके आओ। डंबल। I am not outsider. I'm a picky blinder. You are my reminder. Play
जब प्यार किया तो डरना क्या, और जब आर्ट्स लिया तो पढ़ना क्या। Remember this. As you gain fame, as you gain fortune, as you gain position and seniority, people will treat you better. They will hold doors open for you. They will get you a cup of tea and coffee without you even asking. They will call you sir and ma'am, and they will give you stuff. None of that stuff is meant for you. That stuff is meant for the position you hold. It is meant for the level that you have achieved of leader or success or whatever you want to call it. But you will always deserve a styrofoam cup. मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा। This is sodium. Really reactive. Let's cut off a piece. Now we want to do this somewhat rapidly. Let's cut this guy in half. This is sodium hydroxide. See that? There's sodium hydroxide. Sodium hydroxide's a base. Okay, I put a few drops in. This one is hydrochloric acid. Hydrochloric in. Phenolphthalein here. It just tells us about acids and bases. Okay, what do we see going on there? Nothing. Now let's put it in the base. So let's go like this. Now, here we go. We'll put them in. You ready? I'm excited. Maybe let's take like a step back. It's okay. It's on the side. It's melting into the side. I got secrets that nobody knows. देखो बेटा, आप ना अभी किस हाल में हो, दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप इस समय अपने बाथरूम में छुप के रो रहे हो या अपने बंद कमरे में बैठ के आप स्ट्रगल कर रहे हो, दुनिया को इसकी कुछ नहीं पड़ी है। आपके बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार होंगे, आपके बहुत ही नज़दीकी दोस्त होंगे, आपको अवॉइड कर रहे होंगे, आपके साथ नहीं रह रहे होंगे। सबको लग रहा होगा इसका तो आईटी नहीं निकलने वाला, इसके साथ मैं क्यों बैठूं। आपके साथ कभी फोटो भी खिंचवाते होंगे ना, तो सोशल मीडिया पर डालते हो, साइड से आपको क्रॉप कर दे रहे होंगे। इतनी मेहनत करो ना बेटा, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना काबिल बनाओ ना कि ये लोग आपके साथ एक फोटो खिंचवाने को तरस जाए, आपकी एक झलक देखने को तरस जाए, और उसका समय अभी आपके पास बाकी है। कहना बहुत आसान होता है कि ये क्यों नहीं पढ़ रहा है, ये क्यों काम करने लगा है। जैसे आपकी पूरी कहानी सुने, उस समय यदि मान लो आपको जुनैद का कॉल नहीं आता, एक कॉल, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जुनैद, आपका एक जुनैद दोस्ती ना होता, आपको पता ही नहीं चलता इस बारे में, तो हो सकता हो आप सऊदी निकल जाते, और फिर सऊदी पहुँच के अगर आपको पता भी चलता कि फिजिक्स वाला क्या ऐप है, तो कहाँ वापस आ पाते, एक अलग ज़िंदगी में आप चले जाते। आज YouTube पे मैंने फ़िल्टर लगाया और देखा कि मेरा सबसे पुराना वीडियो कब का है, तो मैंने देखा 7 साल पहले का सबसे पहला वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, फिजिक्स वाला चैनल पे, जिसके अभी 10 मिलियन स्टूडेंट्स जिसमें जुड़ चुके हैं, 10 मिलियन छात्र जिससे जुड़े हैं, अभी डायमंड बटन भी आया है उसी का। तो मैंने देखा सबसे मेरा पुराना जो वीडियो है वो 7 साल पुराना है, और सच बताऊँ तो उससे पहले भी कुछ वीडियो थे जो मैंने डिलीट कर दिए, क्योंकि मुझे शर्म आती थी ऐसे वीडियो लोग ना देख लें। मैंने कठोर निर्णय लिया, मैंने कहा नहीं यार, दुनिया को देखना चाहिए कि कहाँ से चीज़ें शुरू होती है, कैसे बनता है इंसान। तो मेरा नाम अलख पांडे है, मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, which is electric field intensity denoted by E, is the force experienced तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बनाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां,
दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जो हम हिंदुस्तानी बच्चों को बचपन से पढ़ाया गया, जो मेरे माँ बाप ने भी पढ़ाया, अभी मेहनत कर लो, बाद में मजे ही मजे। My name is Tom Shelby, but I'm dead already. Nobody knows. क्या चाहिए तुझे? शिवांश क्या चाहिए? क्या चाहिए जल्दी बता भैया से। भैया से क्या मांग रहा था? जल्दी मांग। मैं कार्टून की बोल रहा था, इसमें कार्टून लगा दे। नहीं पहले बता क्या मांग रहा था अभी बॉडी बनाने के लिए। टॉर्च बता। नहीं, बस मेरे को कुछ देखना है फोन में। बताते वीडियो बनाएंगे बढ़िया सी। इधर आ। क्या? विशु दोबारा या काट दोबारा। जाने क्यों रहती हो खोई सी, जागी ना सोई सी, अब दिल में अरमा है, सांसों में तूफान है, आंखों में ख्वाबों की है चांदनी। हाँ जाने क्यों बहका सा ये मन है, महका सा ये तन है, चलती हो इधर आके निथला के शर्मा के बरखा के जैसे कोई रागिनी। तुम्हें जो मैंने समझा, तुम्हें जो पहचाना, तुम्हें जो मैंने देखा, जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। Sanatan Dharma is purely scientific. Unlike other religions that believe in a flat earth, Sanatan Dharma is based on logical and rational principles. This has been acknowledged by some of the greatest scientists in the world. Niels Bohr, a Nobel Peace Prize winner known for his atomic theory and quantum physics, turned to the Upanishads to ask questions. Robert Oppenheimer, the father of modern nuclear weapons, called the Bhagavad Gita the most beautiful philosophical song in any known language. Werner Heisenberg, another Nobel Prize winner and a key figure in quantum physics, said that quantum theory would not seem ridiculous to those who have read Vedanta. Even Erwin Schrödinger, the famous Austrian physicist, said that most of his ideas and theories were heavily influenced by Vedanta. Nikola Tesla, a renowned physicist, was inspired and influenced by Sanatan Dharma and considered Swami Vivekananda as his mentor. This shows that Sanatan Dharma is pure science. आप अपने जीवन का दर्द जाके 4 लोगों से जब शेयर करते हो, 4 लोगों को जब बताते हो, तो आपने अक्सर देखा है कि वो लोग आपका दर्द या तो सुनते नहीं हैं, यदि सुनते हैं तो समझते नहीं हैं, और यदि दोनों करते हैं तो उसका एक ही कारण होता है कि इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को कैसे आपके खिलाफ वो इस्तेमाल करेंगे, आपके पीठ पीछे कैसे आपकी बुराई करेंगे। When it hurts, but it hurts so good. Do you take it? Do you break it off when it hurts? बादशाह बनना है दुनिया का? Yes or no? Yes, तो
भाई साहब त्याग तो करना पड़ेगा चीजों का। या तो आज जीवन में त्याग कर लो या कल पूरे जीवन भर काश करते रहना कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा किया होता। Stay motivated. This is a competitive world. Yes, it's true, it's a competitive world, and I'm damn sure that you will make a brilliant life of yourself. I'm damn sure. बहुत खूबसूरत लाइफ होगी, बहुत बढ़िया आपके पास जॉब होगी, या आप बहुत बड़े कोई एंटरप्रेन्योर होगे, स्पोर्ट्समैन होगे, म्यूजिशियन होगे, बहुत बढ़िया कर रहे होगे जीवन में। जस्ट इमेजिन, हो रहा है, ये होगा जीवन में। मैंने खुद पे यही भरोसा किया था। इसका मतलब है मैं तेरी हो गईया, तू मैनू रोण ना देवी। वे मैं तेरी हो गईया, तू मैनू रोण ना देवी। इन्हां मेरियां अखियां तो हंझू चोण ना देवी। जिवें कवेंगा उवें रह लांगी, हंस हंस के सब कुछ सह लांगी। जिवें कवेंगा उवें रह लांगी, हंस हंस के सब कुछ सह लांगी। माहिया तू वादा कर, माहिया तू वादा कर, कद दूर न जावेंगा तू मेरे बाजों, किते होर न लावेंगा। वे मैं तेरी हो गईया, मैनू रोण ना देवी। इन्हां मेरियां अखियां तो हंझ चोण ना देवी। सुबह भी तू है ते तू शाम है, इस जुबान ते एक ही नाम तेरा नाम है। हो मेरी सुबह भी तू है, तू शाम है, इस जुबान ते एक ही नाम तेरा नाम है। कठपुतली तेरी मैं जिवें मर्जी खेड लवी, तेरे लिए लड़ जू रब नाल अजमा के वेख लवी। तू हसदा है ते मेरा रब हसदा, तेरे अंदर मेरा खुदा वसदा। तू हसदा है ते मेरा रब हसदा, तेरे अंदर मेरा खुदा वसदा। माहिया तू वादा कर, माहिया तू वादा कर, कद दूर न जावेंगा तू मेरे बाजों, किते होर न लावेंगा। वे मैं तेरी हो गईया, मैनू रोण ना देवी। इन्हां मेरियां अखियां तो हंझ चोण ना देवी। छड्डिया तू मैनू ना छड्ड देवी। इश्क दे बागां च ना कर तू अड देवी। तेरे लिए जग छड्डिया तू मैनू ना छड्ड देवी। इश्क दे बागां च ना कर तू अड देवी। कंडियां ते नचा लई तू ना सी करूं सोने, तां भी मैं हंस हंस के जी जी करूं सोने। मेरे तेरे नाल ने चा सजना, तू मंजिल तू योरा सजना। मेरे तेरे नाल ने चा सजना, तू मंजिल तू योरा सजना।
माहिया तू वादा कर, माहिया तू वादा कर, कद दूर न जावेंगा तू मेरे बाजों, किते होर न लावेंगा वे मैं तेरी हो गईया, मैनू रोन ना देवी इन्ना मेरी अखियां तो हंझ छोड़ ना देवी। मेरी दुनिया में ना एक इंसान है जिसने मुझे यहाँ तक बनाया है, तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा था। भटके हुए मुसाफिर का बसेरा बन गया, भटके हुए मुसाफिर का बसेरा बन गया, मेरी अंधेरी रातों का तू सवेरा बन गया। मेरी ज़िंदगी में आया है तो कुछ इस तरह, मेरी ज़िंदगी में आया है तो कुछ इस तरह, जैसे कब्र में पड़ी लाश को सांसों का सहारा मिल गया। बहुत बड़ी बात है किसी YouTube के वीडियो को, पढ़ाई वाले वीडियो को, ज्ञान के वीडियो को, स्कूल के बोरिंग पढ़ाई के वीडियो को 5 घंटे देखना। मैड रिस्पेक्ट है यार, मैड रिस्पेक्ट। बॉस लव यू ऑल यार। तुम लोग लाइफ में, मुझे नहीं पता तुम लोग बोर्ड में मार्क्स ला पाओगे नहीं ला पाओगे, वो फर्क भी नहीं पड़ता सच बताऊं तो। कोशिश जरूर करना, लेकिन तुम लोग फोड़ोगे यार, तुम लोग कुछ करोगे यार, तुम्हें दम है भाई, बड़ी बात है। भी तो गंभीर हो जाया करो, जब तक कुछ ठोली करते रहते हो। गंभीर हो जा, हो गया गंभीर। बोलो क्या बोल रहे हैं? पर याद रखना, अगर तुम किसी भी चीज के साथ जरूरत से ज्यादा समय बिता लो तो तुम्हें उससे प्यार हो जाता है, भले ही वो तुम्हारा दर्द ही क्यों ना हो। जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो मिला है वही लाजवाब।
मैंने बोला कि मैं ही तो खुदा हूँ, वो बोले हिसाब से बात कर। कलम बोली कि मुझे नहीं चलना है, मैंने बोला किताब से बात कर। मैंने बोला मैं ग्रेमी ले आऊंगा, वो बोले औकात में बात कर। माँ से बोला कि कंप्यूटर दिला दो, माँ बोली कि बाप से बात कर। मैं रोने क्यों लग जाता अक्सर यूं बेवजह मामूली बात पर, या सभी को पसंद है चांद, दिल नहीं आता है किसी का दाग पर। वो बंदे धर्म के रक्षक, मासूमों में गोलियां दाग कर। मैं सोच के गया उस गली में, वो देखेंगे खिड़की से झांक कर। तन्हाइयों में हुस्न की परछाइयों में खूबसूरत हाफिजा, हुस्न गली में सैकड़ों, हुस्न गली में सैकड़ों। क्या आपको पता है कुछ देशों की एक नहीं 2 या 3 भी कैपिटल्स होती हैं? क्या आप एक भी गेस कर सकते हो? चलिए देखते हैं। अगर मैं पहली कंट्री की बात करूं तो साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की एक नहीं 2 नहीं 3 कैपिटल्स हैं। प्रेटोरिया, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बोलते हैं, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और ब्लूम फाउंटेन जुडिशियल कैपिटल है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां की हिस्ट्री और गवर्नेंस सिस्टम अलग है। और एक फन फैक्ट बताऊं आपको, साउथ अफ्रीका दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। अब बात करते हैं बोलीविया की। लोग सोचते हैं कि लापाज कैपिटल है, लेकिन असल में सुक्रे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है, और लापाज सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेशन हैंडल करता है। मुझे चांद देखना पसंद है, उसे चांद सा दिखना पसंद है। वो भी अपने दाग नहीं छुपाती, आंखों में काजल, माथे पे बिंदी नहीं लगाती, होठों को उन्हीं के हाल पर छोड़ देती है, मुस्कुराते ही समाज के सारे बांध तोड़ देती है। पूछे बेटा क्या तू अभी स्टेबल? मेरे मन की नहीं चली, चढ़ाया मुझे बली, लगाए तूने इल्जाम है ना जो। कबूल मुझे सभी दुआएं मेरी लगे, हाँ तू बस तेरी माँ के लिए खड़ा हो। जहाँ पे हो किसी से मन मुटा, वहाँ ना महसूस होंगे जज्बात, ना देखे किसी को अंधेरे में कोई रोशनी, ना किसी के गुजर जाने का मल्ला। जो बेकदर किया है खुद कत्ल मैंने ही खुद की ख्वाहिशों का, अब डर नहीं लगता मुझे मौत छूले पर कैसे देखूं। तुम्हारा ये सियासीपन तुम्हें भिखारी बना देगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। बारे में 100 बातें हैं, मुझे गम मेरे कल के सताते हैं। मेरे कानों पे बजे पूरी इंडस्ट्री, मेरे मुंह पे बताना नहीं चाहते हैं। मैंने चांद से रिश्ते बिगाड़े हैं, तभी नूर में नजर नहीं आते हैं। मैंने देखे हैं मोटे करिश्मे भी, जिन्हें कहते लोग तमाशे हैं। आंखों में उठने लगा मैंने देखे बदलते जमाने हैं। मुझे नजर से आने हटाते रहे, अपने सपने भी मेरे ही। मेरी जनता ने मेरे में हिम्मत बदल से पल में बिखर जाए, रह जाए लड़का ना फिर कहीं रुक पाए, मुश्किल से चाहते कि फिर कहीं खो जाए। तो ठीक है, रोहिणी नक्षत्र में जन्मा कृष्ण और पुष्य नक्षत्र में जन्मी राधा का विवाह करवाना है। अनुराधा नक्षत्र में अनुराधा अर्थात जो राधा का अनुगामी है, जो राधा के पीछे चले। सही कहा, परंतु अनुराधा नक्षत्र आया नहीं। किसी ख्वाब की तरह जो अब सामने है तू, ओ कैसे यकीन भला। कदाचित मुझसे भूल हुई, नवमीत अनुराधा नक्षत्र में ही है। देखा? सब समझ रहे हैं, तुम उग्रपद काका के गणों में गड़बड़ कर। चलो कोई ग्रहों की स्थिति बदल सकता है क्या? अरे क्या रे, तुम्हारे सामने तो बदली मैंने। तुम मिले या तो जाने ना दूंगा मैं। मेरा एग्जाम था तो मैं कलम नहीं चल रहा दिमाग, ये जो खबर मिली मुझे बेखबर सारे, फिर भी नहीं रुका था हाथ। ये पहुंचे आंसू मैंने अपने बाप के लिए, कोई किताब नहीं फिर भी जवाब दे। हाजिर जवाब में दर्द सवास में लिख रहे हाथ से, पैरों में कांच थे। कट थ्रोट गले काटे मेरे बोल भाई, मेरे आगे बोल नहीं।
ड्रिंक्स किया, 3 दिन खाना नहीं खाया, घर से बाहर नहीं गया, मैं जमीन पर कैसे ना कैसे करके 55,000 रुपए मेरे हाथ में आए। मम्मी ने अपना ये कान का बेचा, 55,000 रुपए यहाँ वहां से पापा ने करे, सब कुछ किया हमने। वो 55,000 रुपए को ना आज मैंने 55 लाख बना दिया। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं खुश रहूं खुद से। फिलहाल बहुत वक्त से मैं कैद हूं करके गुनाह फंसा खुद के जहन में। फिलहाल हाल चाल आजकल कम पूछते हैं लोग मुझे खुद से। फिलहाल मेरे सपनों से दूर मुझे करने पे तुले मेरे अपने। फिलहाल मेरा बहुत वक्त से नहीं खुद पे जोर, दिल टूटने के बाद महसूस हुई चोट। पहले तो मुझे लगा सब आसान, बड़े बड़े चैनल्स करे मुझे कॉल, सर पे घमंड चढ़ा जैसे गिरा खाई में। तोड़ा मैंने रिश्तों को बैठे बैठे छाई में, आंखें खुली जब तक हो चुकी थी देर। मैंने खोया मेरे अपनों को अपनों से अपनी लड़ाई में। बे तू भी सही, तेरी जगह मेरे जैसा इंसान साला किसी का नहीं होगा। सुन मुझे कर देना माफ जो मैं मर जाऊं कल, पर ऐसा भी ना होगा। ये मुझे देख मारे तालियां पर मुड़ते ही देने लगे गालियां। खैर मुझे पता तो है सब, मुझे पता तो है सब। जीनियस बच्चों के लिए लग रही है मुझे ना, और तुम जीनियस बन जाओगे जो नहीं, टेंशन मत लो। तुम्हें देखो बस वही है, डिटेल में पढ़ने के लिए अपनी इमेजिनेशन, अपना पूरा फोकस एक साथ रखना होता है। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी। मुझे आज भी याद है कि जब मेरे फादर मुझे पहली बार कोठे पे ले गए थे। कितने बड़े थे आप उस टाइम? नहीं, इतना बड़ा तो था कि खड़ा हो गया और फिर नाचने लगा। पेपर बहुत इजी आया था, बहुत अच्छा गया। मैंने 2 एक्स्ट्रा शीट ली और वो भी पूरी भर दी, तो ओवरऑल 40 पेज का मैंने लिखा है। तो मेरे को तो पता है अच्छा गया है पेपर, और इजी था, काफी प्रेडिक्टेबल पेपर था। अच्छा मुझे ये बताइए आपका पेपर कैसा आया था? मैम पतला सा था, गोरा सा था। अरे मेरा मतलब ये है कि पेपर कैसा गया? गया नहीं मैम, छीन लिया था मैम ने। अरे मैं ये कह रही हूँ तुम्हारा पेपर कैसा गया, अच्छा या बुरा? मैम पेपर तो 1 नंबर का गया। सर ने सारे वो क्वेश्चन दे रखे थे जो मेरे को ही नहीं पता थे, मैंने भी आंसर वही लिख दिए जो सर को ही नहीं पता। कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। कल था फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है, क्या मुझे प्यार है। एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर के बीच में मिनिमम तुम्हारी 3 रिवीजन हो जानी चाहिए। और एक सेकंड रुको भैया, कहाँ से कर ले 3 रिवीजन? आप तो बोल के चले जाते हो कि 3 रिवीजन मान लो, डीपीपी भी कर लो, फिर मॉड्यूल भी कर लो, फिर उसके बाद ये सैंपल पेपर भी कर लो। कहाँ से कर लें? इसके लिए टाइम कहाँ से निकालें? सुबह 6 घंटे हमारा स्कूल ले जाता है, फिर वहां से आते हैं 4 पता नहीं कब बच जाते खाना खाते खाते, फिर 4 से 8 वापस हमारी कोचिंग की क्लास होती है, वहां से आते हैं फिर स्कूल का होमवर्क, कोचिंग का होमवर्क, कोचिंग के असाइनमेंट, कोचिंग की डीपीपी, फिर उसके बाद स्कूल की डीपीपी, स्कूल का नोटबुक, स्कूल के प्रोजेक्ट। 8 से 12 के बीच में कहां से कर ले ये सब हम भैया? पूरे जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। श्रृंगार तो अति सुंदर, तुमने
मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। अब मेरे हाथ में फोन है, लोग कहते नहीं यार 10 मिनट बाद रिप्लाई करूंगा, मेरी वैल्यू बनी रही, सेम टाइम पे नहीं रिप्लाई करूंगा। इतनी छोटी बात पे आ गए हैं लोग सर। किसी का मैसेज आया हाय, कह रहे नहीं सेम टाइम पे रिप्लाई नहीं करता हूँ। तो अवेलेबल है भाई, तेरे हाथ में फोन है, मैसेज कर उसको कटाक से यार। क्या पता इंसान किस एजेंसी में हो, कुछ काम की बात कर रहा हो, कुछ नीड में हो, कह रहे इज्जत बनी रही। भाई थोड़े टाइम बाद ऐसा लगेगा कि यार नहीं है, अरे यार क्या बिजी है भाई।